Class ninth. Good morning to all dear students. We have done complete the last chapter 6, and I hope you have done complete the question answers of the last chapter 6. Now today we will start the new chapter Moment chapter 7, the last leaf. It's really a very interesting story, and it's shows it shows about a human nature, and it's very interesting story which is written by O. Henry. In the story, Sue and Johnsy are the two young artists and friends. They live in a small flat on the third floor on an old building. They earn their living by making paintings. Once upon, Johnsy falls ill of pneumonia and she continues looking out of the window. The doctor visits daily, but there is no improvement in her health. The doctor tells Sue that her friend has lost will to live, and Sue finds that Johnsy is continuing the remaining leaves of the ivy creeper outside the window. Johnsy believes illogically that she will die with the fall of the last leaf. Sue effort. Now, this was the story. Now let us see the chapter. It is autumn. The wind is blowing hard and it is raining heavily. All the leaves on the ivory creeper have fallen except one. Why doesn't the last leaf fall? This is the story. It is autumn season. After winter season, autumn comes and the wind is blowing hard. The wind is blowing very hard and it is raining heavily. After winters in summer, after that rain comes, so that it is raining heavily. All the leaves of the ivory plant have fallen except one. सारी पत्तियां खिल चुकी हैं ivory plant की, केवल एक को छोड़ के. Why doesn't last leaf fall? आखिर में ये आखिरी पत्ती क्यों नहीं गिरी? The story is based on this last leaf. Sue and Johnsy, two young artists, and shared a small flat. The flat was on the third story on an old house. Sue and Johnsy जो हैं वो दो यंग आर्टिस्ट हैं और सेम हाउस शेयर करती हैं, एक ही फ्लैट में रहती हैं. द फ्लैट वाज ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस. एक पुराने से घर में वो थर्ड फ्लोर पर रहती हैं. जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर. शी हैड निमोनिया. शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग, जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो. सू, her friend, became very worried. She sent for the doctor. Although he came every day, there was no change in Johnsy's condition. They both are very close friends and shared same flat. And one day, and जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इन नवंबर में जो है जॉन्सी बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है, बहुत सीरियसली, बहुत ज़्यादा. शी हैड निमोनिया टाइप ऑफ ए डिजीज़, उसे निमोनिया होता है. शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग. शी डजन मूव एंड रिमेन ऑलवेज होल डे इन द बेड. अब वो चलती फिरती नहीं थी, ज़्यादा मूव नहीं करती थी और सारा दिन बिस्तर पर रहती थी. एंड वॉट शी डिड एट द रूम, जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो. वो केवल अपने बेड पर लेटी रहती थी और विंडो से बाहर देखती रहती थी. Sue, her friend, became very worried. Sue became very tensionized for the Johnsy's health. She became very worried, very tensionized. She sent for the doctor. She sent Johnsy for the doctor. वो Johnsy को डॉक्टर के पास भेजती है. Although he came every day, there was no change in Johnsy's condition. After that, he came every day, and doctor came every day to look after the Johnsy, but there was no change in the health of the Johnsys, in the illness of the healthy Johnsy. There is no recovery. हालांकि डॉक्टर रोज आता था, लेकिन जॉन्सी की कंडीशन में कोई भी सुधार नहीं था. वाई? सी, देखिए क्यों. वन डे द डॉक्टर टुक सू aside and asked her, is anything worrying Johnsy? देयर वॉज नो इम्प्रूवमेंट इन द कंडीशन ऑफ द जॉन्सी की कंडीशन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था. इसलिए एक दिन डॉक्टर आता है एंड टुक सू असाइड्स एंड आस्क्ड हर, और सू को एक तरफ ले जाकर पूछता है, इज एनीथिंग वरिंग जॉन्सी,
क्या किसी चीज़ की टेंशन है जॉन्सी को या किसी बात की उसे चिंता सता रही है? नो रिप्लाइड सू। सू कुछ भी जवाब नहीं दे पाई। बट वाई डू यू आस्क एंड आस्क टू डॉक्टर, और डॉक्टर से कहती है आपने ऐसा क्यों पूछा? द डॉक्टर सेड जॉन्सी it seems has made up her mind that she is not going to get well. If she doesn't want to live, medicines will not help her. Doctor told the Sue that Johnsy, it seems, has made up her mind that she is not going to गेट वेल। डॉक्टर कहता है कि शायद जॉन्सी मेड अप हर माइंड, जॉन्सी ने अपना माइंड इस तरह से मेकअप कर लिया है कि वो अब ठीक नहीं होगी। शी इज़ नॉट गोइंग टू गेट वेल, कि वो ठीक नहीं हो पाएगी, वो कभी भी ठीक नहीं हो सकती। और इफ़ शी डजंट वांट टू लिव, और अगर वो जीना नहीं चाहेगी, मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर, तो ये दवाइयाँ उस पर कोई असर नहीं करेंगी, कोई हेल्प नहीं करेंगी। सू ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जॉन्सी टेक इंटरेस्ट इन थिंग्स अराउंड हर। सू ने बहुत कोशिश की थी। सू ट्राइड हर बेस्ट, सू ने अपनी तरफ से बहुत अच्छी कोशिश की थी। डिड एवरीथिंग शी कुड फॉर द जॉन्सी, जितना वो जॉन्सी के लिए कर सकती थी उसने कोशिश की। टेक एन इंटरेस्ट इन थिंग्स अराउंड हर, कि वो अपने आसपास की चीज़ों में इंटरेस्ट शो करे। शी टॉक्ड अबाउट क्लोथ्स एंड फैशंस बट जॉन्सी डिडंट रिस्पॉन्ड। Sue talked to the Johnsy about the clothes, वो उससे कपड़ों के बारे में, फैशंस के बारे में बात करती, बट जॉन्सी डिडंट शो एनी इंटरेस्ट, लेकिन उसके बाद भी जॉन्सी ने किसी भी चीज़ में कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया। जॉन्सी कंटिन्यूइंग टू लाई स्टिल ऑन हर बेड, जॉन्सी कंटिन्यू अपने बेड पर ही रहती थी। सू ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सीज रूम एंड स्टार्टेड पेंटिंग। अब सू ने एक ड्राइंग बोर्ड परचेज़ किया और ड्राइंग बोर्ड जो है वो जॉन्सीज के रूम में लगाया एंड स्टार्टेड पेंटिंग, और वो उसने वहीं पर उसने पेंटिंग करना शुरू कर दिया। जॉन्सी के कमरे में अपना ड्राइंग बोर्ड ले आती है एंड वो वहीं पर अब पेंटिंग करती थी। नाउ टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस शी विसल्ड वाइल वॉकिंग, और अब वो क्या करती थी, वह जब भी अपनी पेंटिंग करती थी, जॉन्सी का जो ध्यान है वो उसकी इलनेस से हटाने के लिए, बीमारी से हटाने के लिए, वो अपना पेंटिंग करते वक्त भी विसिल बजाया करती थी। विसिल बजाना यानी सीटी बजाया करती थी। विशिल्ड वाइल वॉकिंग, वो सीटी बजाती रहती थी ताकि जॉन्सी का ध्यान अपनी बीमारी पर ना रहे। सडनली सू हर्ड जॉन्सीज विस्पर समथिंग, अचानक सू ने सुना कि जॉन्सी कुछ कह रही है। उसने उसे कुछ धीरे धीरे बोलते हुए सुना। She quickly rushed to the bed and heard Johnson's continuing backwards. वो सीधी तेजी से दौड़ती हुई उसके बेड के पास जाती है and heard, और सुनती है जॉन्सी continue backwards. वह तेजी से बिस्तर की ओर दौड़ती है और उसने जॉन्सी को बैकवर्ड काउंटिंग काउंट करते हुए सुना। She was काउंटिंग बैकवर्ड्स, वो उल्टी गिनती कर रही थी, बैकवर्ड काउंटिंग कर रही थी। शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, वो खिड़की से बाहर। हु वॉज वॉचिंग आउट ऑफ द विंडो? जॉन्सी वॉज वॉचिंग आउट ऑफ द विंडो। जॉन्सी जो है वो विंडो से बाहर देख रही थी। एंड शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड वॉज सेइंग, वो विंडो से बाहर देख रही थी और कह रही थी 12 आफ्टर सम टाइम शी विस्पर्ड 11 then 10 then 9 8 7। शी वॉज मेकिंग बैकवर्ड काउंटिंग। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, शी स्टार्टेड द काउंटिंग, उसने गिनना शुरू कर दिया, लाइक इस तरह से 12। आफ्टर सम टाइम शी विस्पर्ड, फिर कुछ देर बाद वो बोली 11 then 10 then 9 8 7। सू एनेक्शियसली लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, सू जो है वो बहुत ही चिंता करती हुई बाहर देख रही थी। वो देख रही थी कि जॉन्सी कुछ देख रही है खिड़की के बाहर। सू ने चिंता के साथ खिड़की के बाहर देखा तो उसने शी सॉ, वो वहाँ देखती है एन ओल्ड आइवरी क्रीपर क्लाइंबिंग हाफ वे अप द ब्रिक वॉल अपोजिट देयर विंडो। तो उसने वहाँ देखा, शी सॉ, वो वहाँ देखती है एन ओल्ड आइवरी क्रीपर, कि एक जो है आइवरी टाइप ऑफ ए फ्लावर, एक अंगूर की बेल जो है उसने खिड़की के सामने वाली दीवार पर देखी। शी सॉ एन ओल्ड आइवरी क्रीपर क्लाइंबिंग हाफ वे अप टू द ब्रिक वॉल अपोजिट साइड देयर विंडो। उनकी खिड़की के जस्ट सामने एक अंगूर की बेल थी और
वो वहाँ पे चढ़ी हुई थी। इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड द क्रीपर वॉज शेडिंग इट्स लीव्स, और जब बहुत तेज़ हवा चल रही थी उसने देखी कि अंगूर की बेल को अपनी खिड़की के सामने वाली ईंटों की दीवार पर आधी ऊंचाई तक चढ़े हुए देखा, और जब बाहर तेज हवा में उस बेल से पत्तियां झड़ रही थी। शी नोटिस दैट द लीफ वॉज फॉलिंग डाउन, उसने देखा कि पत्तियां नीचे गिर रही थी। वॉट इज़ इट डियर, सू आस्क्ड, सू ने जॉन्सी से पूछा, वॉट इज़ दिस डियर, ये सब क्या है प्रिय। 6 विस्पर्ड जॉन्सी, 6, फिर से जॉन्सी ने कहा। दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ, वो बड़ी तेज़ी से गिर रही हैं। 3 days एगो देयर वर ऑलमोस्ट 100 लीव्स, 3 दिन पहले लगभग यहाँ 100 के आसपास लीव्स थी। देयर आर ओनली 5 लेफ्ट नाउ, लेकिन अब केवल 5 लीव्स रह गई हैं। इट इज़ ऑटम, ये पतझड़ का मौसम है, सेड सू, सू ने कहा। एंड द लीव्स विल फॉल, और इस मौसम में पत्तियाँ गिरती हैं तो वो गिरेंगी। व्हेन द लास्ट लीव फॉल्स I will die, said the Johnsy with finality. She came to know. अब जॉन्सी ने आखिर में कहा कि जब ये आखिरी पत्ती गिर जाएगी, when the last leaf falls, जब ये आखिरी पत्ती गिरेगी, I will die, तो मेरी डेथ हो जाएगी, मैं मर जाऊंगी। I will die, said the Johnsy. जॉन्सी का यही टेंशन था। जॉन्सी विद फाइनलिटी, आखिरी में उसने अपना उत्तर दिया। आई हैव नो दिस फॉर द लास्ट 3 days, और मैं जानती हूँ ये आखिरी 3 दिनों में होगा। ओ दैट्स नॉनसेंस, ओ ये क्या नॉनसेंस टॉक है, रिप्लाइड सू, सू ने कहा। व्हाट हैव ओल्ड आइवी लीव्स टू डू विद योर गेटिंग वेल, ओ डिड यू कनेक्टेड विद द आइवरी लीव्स विद योर गेटिंग वेल। ओ व्हाट हैव ओल्ड आइवी लीव्स, इन पुरानी पत्तियों का क्या है टू डू विद योर गेटिंग वेल, क्या इनसे तुम ठीक होगी। द डॉक्टर इज़ कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट बेटर, डॉक्टर कॉन्फिडेंट है तुम्हारी हालत में सुधार है। तो कुछ तुम एंड नाउ आई डोंट, जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग, तब जॉन्सी ने डिडंट रिप्लाई, जॉन्सी ने कुछ भी नहीं कहा। सू वेंट एंड ब्रॉट हर ए बॉल ऑफ सूप, सू जाती है और उसके लिए एक गर्म बॉल सूप का लेकर आती है। जॉन्सी एक गर्म सूप का बॉल उसके लिए लेकर आती है। आई डोंट वॉन्ट एनी सूप, सेड जॉन्सी, तो जॉन्सी कहती है मुझे कोई सूप नहीं लेना। आई एम नॉट हंग्री, मुझे भूख नहीं है। नाउ देयर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट, और अब वहाँ पर केवल 4 लीव्स रहती है, केवल 4 ही लीव्स रहती हैं, बचती हैं, लेफ्ट। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फैल बिफोर it gets dark and then I will sleep forever. Johnsy very deeply connected herself with the leaves. Johnsy ने खुद को उन पत्तियों से बहुत ज़्यादा internally connect कर लिया था। These all things understand by the Sue, और सू ने इन सब बातों को समझ लिया था। जॉन्सी कहती है I want to see the last one, मैं उस आखिरी पत्ती को देखना चाहती हूँ। फॉल, गिरने से पहले, बिफोर इट गेट्स डार्क, अंधेरा होने से पहले मैं उस आखिरी पत्ती को देखना चाहती हूँ। देन आई विल स्लीप फॉर एवर, और फिर मैं भी हमेशा के लिए सो जाऊँगी। सू सैट ऑन द जॉन्सीज बेड, जॉन्सी को सू को बहुत ज़्यादा टेंशन होती है जॉन्सी के लिए। एंड शी सैट नियर बाय द जॉन्सीज बेड, वो उसके बेड पर जॉन्सीज के पास बैठ जाती है। किस्ड हर, उसे किस करती है। एंड सैड, और कहती है यू आर नॉट गोइंग टू डाई, तुम नहीं मरने वाली हो, तुम नहीं, यू आर नॉट गोइंग टू डाई, तुम नहीं, यू आर गेटिंग बेटर। आई कांट ड्रॉ द कर्टेन फॉर आई नीड द लाइट, आई कांट ड्रॉ द कर्टन फॉर आई नीड द लाइट, और मैं यहाँ कर्टन भी नहीं लगा सकती क्योंकि मुझे रोशनी की ज़रूरत होती है। आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग एंड गेट सम मनी फॉर अस, मैं जल्दी ही अपनी पेंटिंग कंप्लीट कर लूँगी और हमारे पास कुछ पैसा होगा। प्लीज़ माई डियर बी होपफुल, प्लीज़ माई डियर बी होपफुल। In this story, we can understand the human feeling for the friends and for each other. Now, Johnsy, how did she connected herself with the ivory leaves, and how did the Johnsy helped her to come out from these all falling things? This is the chapter. It's very interesting. Today is enough. Remaining part of the story we will see tomorrow. Thank you. Have a nice day.